Okay, so today we are going to start one of the important topic of geography, that is weathering. Before moving to the topic, let us discuss about geomorphology because the topic weathering is considered under the geomorphology. So first of all, what is geomorphology? Basically, geomorphology is the study of particular section of geography in which we will discuss about the earth. As the name suggests, geo means earth. So what we will discuss here, we will discuss the geographical time scale. We will discuss about the different type of landforms. We will discuss about some of the exogenic force, some of the endogenic forces. We will discuss about different type of rocks. So if we discuss about the rock, so it is necessary that we will discuss about the volcanoes as well. Okay, we will discuss about different type of faults. We will discuss about different type of faults. So this all we will consider in this particular section of the geography, that is geomorphology. So let's start with the topic, that is weathering. So our today's topic is weathering. So first of all, we should know what is weathering. What is the meaning of weathering? So weathering is basically disintegration of rocks. We know we have different type of rocks. We have igneous rock, we have metamorphic rocks. So if those rocks get disintegration and they get decomposed, so there is two words. One is disintegration, and second we have is decomposition. तो अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो हम बेसिकली यही बोल रहे हैं कि रॉक्स का टूटना ही हमारे पास वेदरिंग कहलाता है, लेकिन ऑन इट्स ओन प्लेस। रॉक्स का अपनी ही जगह पर टूटना वेदरिंग कहलाता है, अपनी ही जगह पर उसका डिसइंटीग्रेट हो जाना। और एट इट्स प्लेस को हम क्या बोलेंगे, इन सीतू। ये हमारे पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रॉक्स का अपने ही सीतू पर, दैट इज अपने ही प्लेस के ऊपर टूट जाना, वेदरिंग हम इसको बोल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द वेदरिंग। अब वो टूटेंगी कैसे? कोई ना कोई फोर्सेस वहां पर लग रही होंगी, कोई ना कोई फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो रॉक्स हैं वो टूट रहे हैं। तो लेट अस कंसिडरिंग दोस। तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की वेदरिंग है। सो वी हैव द टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं तीन कौन कौन सी तरह की वेदरिंग है। सबसे पहले हमारे पास आती है, दैट इज द केमिकल वेदरिंग। Second, we will discuss about physical weathering. And third, we have the biological weathering. तो हमारे पास तीन तरह की वेदरिंग है। फिजिकल का ही दूसरा नाम है, दैट इज मैकेनिकल। Sorry, my writing is not clear on this whiteboard because I am recording the class. That's why it's lagging. Okay. सो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की वेदरिंग होती है। एक केमिकल है हमारे पास, एक फिजिकल है, एक बायोलॉजिकल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग से हमारा क्या मतलब है। अब केमिकल वेदरिंग से हमारा ये मतलब है कि कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है केमिकल का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो, जैसे हमारे पास बहुत तरह की केमिकल्स होती हैं, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बोनेशन इसका एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मिनरल्स के साथ। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अंदर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा इनटू द मिनरल, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सो ये सब हमारा केमिकल वेदरिंग के अंडर आता है।
So let us discuss one by one. So we are starting with the chemical weathering. Let me texting because not getting the correct. Okay. So if I'm talking about the chemical weathering, so we have different types here. First of all, we have solution is one type. We will discuss it. And then after solution, we can say we have the another type that is known as carbonation. Then we have the hydration. We have the oxidation and reduction. Okay, so these are the important types of the chemical weathering. One is the carbon solution, second is the carbonation, hydration, oxidation, and reduction. So let us discuss one by one. First of all, we have the solution. So basically, in the process of solution, there is the dissolution of soluble mineral into water. So solution involves dissolution. It involves dissolution of what? Dissolution of soluble minerals. And these soluble minerals dissolve in the water, and this process is known as solution. Let us take the example. If I am talking about the rainwater here. So in the case of rainwater, we know that which contain dissolved carbon dioxide forming weak carbonic acid. We know that rainwater has carbon dioxide. It has a carbon dioxide, and that carbon dioxide, when dissolved, it will convert into the carbonic acid. It will convert into the carbonic acid, and carbonic acid is a chemical. Carbonic acid is a chemical. So now this carbonic acid will further dissolve into minerals like gypsum, like limestone, which is partially soluble, nitrate, sulfate, phosphate, and this will disintegrate the rock. So this is the process of solution. Let us discuss it. We will discuss it again after a few times. Okay, next we have the carbonation. As the name suggests, carbonation, carbon. There is a word carbon. So it means there is a role of carbon. So in the process of carbonation, इसके अंदर basically होता क्या है? इसके अंदर रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मिनरल्स के साथ. जब कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की रिएक्शन हो रही है आपस में, और वो रिएक्ट करके बना क्या रही हैं? वो रिएक्ट करके हमारे पास बना रहे हैं दैट इज कार्बोनेट्स. जब वो रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बना रहे हैं और कार्बोनेट्स के साथ साथ बाइकार्बोनेट्स. अब ये मत बोलना कि मैम हमने तो ह्यूमैनिटीज ली ही इस करके है कि हमारा साइंस से पीछे छूट जाए और आप फिर से 10th वाले रिएक्शंस करा रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. कार्बोनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल दोनों रिएक्ट होती हैं. रिएक्ट करके वो कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स बनाती हैं. अब जिसकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से सोयल के अंदर हाई कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है. This will enhance in region with high carbon dioxide level in the soil. तो और ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन के अंदर या फिर डोलोमाइट रीजन के अंदर. जहां पर लाइमस्टोन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, जिस रीजन से हमें ज्यादा मिलेगा, डोलोमाइट हमें जहां से ज्यादा मिलेगा, वहां पे हम कार्बोनेशन के प्रोसेस को देखते हैं बेसिकली. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोनेशन. ओके, अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज हाइड्रेशन. अब हाइड्रेशन का क्या मैम मतलब? वही है कि जैसे हमें घर पे बोलते हैं कि हाइड्रेटेड रहो, गर्मी इतनी ज्यादा है, तो देखते हैं अभी वही है एक तरह से.
तो बेसिकली हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम देख रहे हैं दैट इज ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। पानी पानी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉरी एब्जॉर्प्शन, पानी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है इसके अंदर। और जो पानी और एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। रोक की वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है रोक के अंदर। रोक के अंदर स्वेलिंग हो गई है। अब जब रोग के अंदर स्वेलिंग हो गई है तो कुछ टाइम के बाद वो रोग जो है वो क्या हो जाएगा? वो वीक हो जाएगा। ड्यू टू दिस स्वेलिंग वो रोग जो है वो वीक हो जाएगा। और जैसे ही वो वीक हो जाएगा, और हमेशा हाइड्रेटेड जो रोग होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो वीक हो गया, क्योंकि उसके अंदर टाइनी पोर्स जो है उसके अंदर पानी फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। और जब रोग सॉफ्ट हो गया, जब हमारा रोग वीक हो गया, तो ऑब्वियसली वो क्या कर जाएगा? वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज द फोर्थ टाइप, विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है जो क्लास 10th में भी था, और जिसे हम सबने, हमें समझ तो बहुत कम आया था, हमने सिर्फ इसको ऐसे ही याद कर लिया था। तो ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के अंदर ना ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक में से ऑक्सीजन निकल रही है, एक में से ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर जाएगी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो इसके अंदर रिएक्शन होती है मिनरल्स की विद ऑक्सीजन। ठीक है, इस दिस इज O2 बेसिकली। इसके अंदर रिएक्शन हो रही है मिनरल्स की विद ऑक्सीजन। और कहां से हो रही है? फ्रॉम एयर और फ्रॉम वाटर। अब हमें पता है कि कॉमनली जो बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास है उनके अंदर आयरन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आयरन और मिनरल, लेट अस सपोज आयरन है हमारे किसी मिनरल के अंदर, और आयरन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके वो हमेशा क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। अब आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से हमें देखने को मिलेगा डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन क्या होता है? बेसिकली कलर में फर्क आ जाना, कलर में चेंज आ जाना, जिसकी वजह से हमें जो रोग है वो रेडिश कलर का मिलेगा, या फिर हमें रोग जो है वो येलोइश कलर का मिलेगा। ये वाला प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। अब रिडक्शन कहाँ होती है? रिडक्शन वहां होती है जहां पे वाटर लैक्ड कंडीशन होती है, जहां पे पानी की कमी होती है। दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन। अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिडक्शन, तो रिडक्शन बेसिकली वहां पे होगी जहां पे हमारे पास देर इज अ लैक ऑफ वाटर। अगर लैक ऑफ वाटर है तो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जहां पे लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है। बेसिकली ऑक्सीडेशन का ही बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। सो बेसिकली इसका मतलब रिडक्शन का क्या हुआ कि देर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मिनरल। इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मिनरल। मिनरल के अंदर से बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। जैसे आयरन और मैग्नीज के कंपाउंड्स जो होते हैं आर रिड्यूस टू मोर सोल्यूबल फॉर्म। आयरन और मैग्नीज के जो इतने भी कंपाउंड है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं मोर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलती है, क्योंकि रोक जो है वो वीक हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द केमिकल वेदरिंग। लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजिकल वेदरिंग। सो ओके, इफ वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल वेदरिंग, तो फिजिकल वेदरिंग बेसिकली हम किसे बोल रहे हैं, या फिर इसी को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल तरीके से हो रहा है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप है। सबसे पहले
हमारे पास एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हम कह सकते हैं तो टेम्परेचर में चेंज आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास फिजिकल वेदरिंग का एक एग्जांपल है। हम मॉइस्चर कह सकते हैं कि मॉइस्चर की वजह से हमारे पास चेंज आ गया। ठीक है, या फिर क्या हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग है हमारे पास। फ्रीजिंग विल ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द फिजिकल वेदरिंग। फ्रोस्ट हो गया, थ्रोइंग हो गया, या हम कह सकते हैं कि सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ग्रेविटी को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, एक्सफ्लोएशन को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सो ग्रेविटी इज ऑल्सो included in this. Sorry for my writing, as I am shooting the video, that's why it is lagging too much. And next one is exfoliation। है ना, लड़कियों को बहुत पता होता है एक्सफोलिएशन क्या होता है। हमेशा रोज ऐड आती है एक्सप्लोइट योर स्किन, है ना, तो वही एक्सप्लोएशन है बेसिकली। सो लेट अस डिस्कस। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अनफोल्डिंग एंड एक्सपेंशन। Basically, rock deep within the earth crust formed under high pressure due to weight of overlaying rocks and sediments। ये हमें इस बात के बारे में पता है कि रॉक्स जो हैं बेसिकली वो कैसे बनते हैं, हाई प्रेशर की वजह से। हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से नहीं, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर की वजह से तो वो पिघल जाते हैं बेसिकली। एक्चुअल में ये वोल्केनिक इरप्शन वाला टॉपिक है कि जैसे हमारे पास वोल्केनो होती है, अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो मेल्ट होकर के वो लावा की फॉर्म में बाहर आता है, और बाद में जाके मैग्मा और लावा बेसिकली हम कंसिडर करते हैं। बाद में जाकर के वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। तो अनफोल्डिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, when erosion uplift remove the overlying material, the pressure or underlying being is suddenly reduced, this cause the expansion of the rock basically। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, इसके अंदर सिंपली हमारे पास यही है कि जब सबसे पहले तो रॉक जो है वो डीप अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है हाई प्रेशर की वजह से, और उसके बाद क्या होता है, इरोजन कैसे वहां पर एक्ट करती है बेसिकली। व्हेन इरोजन अपलिफ्ट, जब इरोजन अपलिफ्ट होती है तो रिमूव हो जाती है ओवरलाइन मटेरियल की लेयर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है देर इज वी कैन से द एक्सपेंड ऑफ द आउटवर्ड एंड द अपवर्ड लेयर, दैट इज नोन एज द अपफोल्डिंग और हमारे पास एक्सपेंशन। नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को कैसे कंसिडर करेंगे। देखो, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है हाई होगा, ठीक है, जैसे अगर हम वोल्केनो की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वोल्केनो के अंदर हमारे पास टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास रॉक जो है वो लूजन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दे वहां पर मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। सो ये हमारे पास टेम्परेचर है। सेम ऐसे ही हम विंड की बात करेंगे, विंड तो ऐसे बोलते हैं ना, विंड तो रॉक को चीर देती है, तो वो भी डिसइंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रोस्ट। ओके, तो फ्रोस्ट को थोड़ा सा हम डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अगर हम फ्रोस्ट की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज ये हमारे पास ऐसे एक लैंड सरफेस है, इसके बीच में ऐसे क्रैक्स बने होते ही है, लैंड्स के बीच में क्रैक्स। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा, वाटर जो है इन जॉइंट्स, ये लेट अस सपोज मैं येलो वाला वाटर बना रही हूँ, वाटर जो है वो इन जॉइंट्स के थ्रू अंदर चला जाएगा। ठीक है, और सम टाइम के बाद क्या होगा कि पानी जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि पानी जो है वो कूल डाउन डाउन हो गया और फ्रीज हो गया। अब जब पानी फ्रीज हो गया वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइस जो है इसकी वॉल्स पर यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे बेसिकली। अब आइस ने जो है यहाँ पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया। अब उस प्रेशर की वजह से यहां पर हमें देखने को मिलेगी डिस इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज
द प्रोसेस ऑफ फ्रोस्टिंग एक्शन, इसको हम फ्रोस्टिंग एक्शन बोलते हैं बेसिकली। ओके। अच्छा, अगर हम एग्जांपल लें, अभी मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था, अगर हम उसको डायग्राम के थ्रू देखें तो बेसिकली दिन में क्या हो रहा है हमारे पास, लेट अस सपोज ये रोक है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, दिन के अंदर हीट पड़ रही है, लेट अस सपोज ये सन है, सन की वजह से इसके ऊपर हीट पड़ रही है, हीट पड़ने की वजह से ये क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि रात हो गई, चांद आ गया, है ना। अब जब रात हुई तो ये दोबारा से सरफेस जो है इसका कूल हो जाएगा और ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बेसिकली कभी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, कभी एक्सपेंडेशन चल रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें इस रोप के सरफेस पे, लेट सपोज इसका सरफेस है, इसके ऊपर हमें जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे करके हमें इसके ऊपर जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और इस जॉइंट्स की वजह से बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे रोक रह जाएगा, ये जॉइंट्स टूट के यहाँ पर साइड में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और हमें ब्रोकन रोक्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द वे जिस तरीके से टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट कर रहा है हमारे पास वेदरिंग के प्रोसेस को, रोक्स को बेसिकली। सेम ऐसे ही अगर हम विंड की बात करें तो विंड का भी तो यही काम है ना, कि विंड तो बेसिकली हमें पता है कि वो तो इरोजन में भी हेल्प करती है। तो विंड का भी बेसिकली यही काम है कि वो प्रेशर लगाएंगी, हाई प्रेशर होगा तो हमें यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटी की, अब ग्रेविटी कैसे इफेक्ट कर रही है ये हमें देखना है। तो ग्रेविटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट कॉज माना जाता है मैकेनिकल वेदरिंग का, ठीक है। अगर हम देखें स्लोप से, अगर हम देखते हैं हिली स्लोप से, तो वहां पर हम वेदरिंग की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एक्सप्लोएशन। अब एक्सप्लोएशन क्या होता है, बेसिकली एक्सप्लोएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग मटेरियल रिड्यूसेस प्रेशर ऑन रॉक, फ्लेकिंग ऑफ आउटर रॉक लेयर क्रिएटिंग एक्सफोलिएशन, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, या बेसिकली हम इसको बोल देते हैं पीलिंग ऑफ, जो आउटर लेयर है वो पीलिंग ऑफ हो रही है फ्रॉम अ बेयर सरफेस, द ब्रेकिंग और द पीलिंग ऑफ द concentric plates from bare surface is known as exploration। बेसिकली हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, इट इज अ रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग मटेरियल, तो उसको हम बोल रहे हैं बेसिकली एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर बायोलॉजिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं माइक्रोस्कोप की, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, एनिमल्स के एक्शंस की हम बात करेंगे, हाँ, तो इसके अंदर यही सब आएगा। तो बेसिकली बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म माइक्रो भी हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो बड़े एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी हो सकते हैं। तो वो सब रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, वो प्ले करते हैं रोल बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर, ठीक है। सो लेट अस सपोज किसी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हो गई रोक के ऊपर, है ना, तो वो उसकी जो वो रूट्स होंगी वो उसको क्या कर देंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। या फिर हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो क्या होता है कि हाँ, जब दो ऑर्गेनिज्म मिल बांट करके रह रहे होते हैं किसी रोग के ऊपर, लेट सपोज ये रोग है, इसके ऊपर दो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जब वो रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं दे विल अफेक्ट दैट रोग विच कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन। सो दिस इज अबाउट द वेदरिंग जो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, जब हमने वेदरिंग को डिस्कस कर ही लिया है तो हम इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, दैट इज क्रीप। अब क्रीप क्या होता है, क्रीप होती है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास लैंडस्लाइड्स होती हैं, वो क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस क्रीप। अब बेसिकली क्रीप हम बोलते हैं कि एक्सट्रीमली स्लो या फिर ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट। अब पहली बात तो मैम, आप वेदरिंग के साथ क्रीप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेदरिंग की वजह से ही ये सब चीजें हो रही हैं। अब क्रीप बेसिकली क्या है कि जब एक्सट्रीमली स्लो या फिर ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डाउन स्लोप हो रहा है, हमें डाउन स्लोप मूवमेंट देखने को मिल रही है सोयल्स की, या फिर हम बोल सकते हैं रोक डेब्रिस की। अब क्रीप हमारे पास कितनी तरह का होता है, क्रीप हमारे पास तीन तरह का होता है, वन इज सोयल क्रीप, सेकेंड वन इज रॉक क्रीप, एंड थर्ड वी हैव द टेल्स।
तो 3 तरह का हमारे पास होता है। अगर मैं सोयल क्रीप की बात करती हूँ तो बेसिकली ये क्या है कि ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सोयल। जब सोयल नीचे नीचे धीरे धीरे बहुत स्लो धीरे धीरे नीचे आ रही है इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से या फिर मॉइस्चर चेंज होने की वजह से, मॉइस्चर आ जाने की वजह से जब सोयल धीरे धीरे बहुत स्लोली नीचे आ रही है, दैट इज नोन एज द सोयल क्रीपिंग। अगर मैं बात करती हूँ रॉक क्रीपिंग की तो बेसिकली वो भी बड़ा स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल जो है वो डाउन, आप कह सकते हो डाउन स्लोप की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टर्लिस के बारे में तो ये कहाँ होता है, ये इट अकर्स इन अ लूज रॉक फ्रेगमेंट्स एट द बेस ऑफ क्लिफ और द स्टीप। जो स्टीप स्लोप होते हैं हमारे पास, स्टीप स्लोप क्या होते हैं बेसिकली, ये देखो ये कितना स्टीप है ना, परपेंडिकुलर से हमें देखने को लगती है। यहाँ पर जब हमारे पास ग्रेजुअली रॉक फ्रेगमेंट होकर के उसकी जो डेब्री है वो ग्रेजुअली नीचे आती है, दैट इज नोन एज द टेलेस क्रीप। टेलेस के अंदर याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है किस चीज की, यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास एक स्टीपी स्लोप। ऐसे ही हमारे पास एक प्रोसेस और होता है जिसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, और ये बहुत कॉमनली हम न्यूज के अंदर सुनते हैं कि लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो लैंडस्लाइड्स में बेसिकली ये हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है स्लम, लैंड खिसक जाना बेसिकली हम अगर इसे हिंदी में बोले तो। एक हमारे पास इसमें होती है रोक स्लाइड, और एक हमारे पास इसमें होती है डेब्री स्लाइड। तो स्लम्प बेसिकली क्या है कि रोटेशनल स्लाइड अलोंग अ कनकेव सरफेस। अगर हमें रोटेशनल स्लाइड देखने को मिल रही है, घुमावदार स्लाइड देखने को मिल रही है कनकेव सरफेस के ऊपर, तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ स्लम्प। और ये सबसे ज्यादा हमें कौन सी सोइल के अंदर देखने को मिलती है, जो क्ले रिच सोइल होती है उसके अंदर, या फिर जहां पर सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है स्लम्प। बेसिकली जैसे कैसे हो सकता है इसका, अगर हमें हैवी रेनफॉल की वजह से, या फिर हमने जो है रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे स्लोप्स को काट दिया, कटिंग ऑफ द स्लोप्स कर दी हमने, तो वहां पे हमें स्लम्प देखने को मिलता है। अगर मैं रोक एंड डेब्री स्लाइड की बात करूं इन दोनों की, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बड़े बड़े जो रोक मासेस हैं या फिर जो भी डेब्री है रोक का, वो क्या करता है, वो हमारे पास स्टीप स्लोप की वजह से अनस्टेबल हो जाता है और जिसकी वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रोक एंड डेब्री स्लाइड। तो बेसिकली आज हमने यही कवर किया है, नेक्स्ट वी विल कवर इन